Hello students, PDF part 1 active and passive voice, and this is page number 25. Rule number 19, we are talking about order or command, especially imperative sentences. So imperative sentences have order, command, request, advice, all these things are included in imperative sentences. But in this rule number 19, you will learn about ordering or commanding sentences. You see, whenever an imperative sentence starts, it starts with a verb. Here you will find totally different scenario. Earlier you found subject plus verb plus object, okay, but in imperative sentence you don't find any subject. For example, I am doing this work, I do this work, so I and am is not there. It just starts with a verb, main verb, okay. So there may be any object, but there is not any subject in imperative sentence, okay. Do this work. Well, whenever there is a kind of command or order, you feel that it is ordered or it is commanded, you will begin the sentence of passive voice with let, and after beginning with let you will write the object of the active voice, okay. The object of the active voice will be written after let, and then do becomes be done, not to be done. Do becomes be done. For example, love becomes be loved, not to be loved, okay. In the previous video we learned that to do becomes to be done, okay. To love becomes to be loved, but here you don't find any to, so here also no to will be used. Bring a glass of water, let a glass of water. I had also mentioned that an object or a subject can be of 1, 2 or 3 or more than 3 words. So here you find this object is of 4 words, a glass of water. So let a glass of water be brought. Bring becomes brought, third form. So here these examples are given. The negative of imperative sentence is it always starts with don't. Doesn't never comes in an imperative sentence. Always whenever you want to write a negative sentence in imperative, it will start with don't, and if it is affirmative imperative sentence, it will always start with a main verb, action verb. Especially action verb means play, give, go, like this. Then imperative sentence expressing advice, okay. See, what is the difference between these types of sentences and these types of sentences? The difference is that you will not actually realize that this sentence denotes an order. There is no order. You can't order someone to love his country. You can just tell him, you can advise him. It may be simply an advice, or it may be his duty, but it can't be an order, okay. Help the poor, it can be an order or command. So these all are advices, okay. So whenever you find uh, any imperative sentence like this and you think that this is an advice, you will write like this. See, this is the passive voice formula: subject plus should plus be plus verb, third form. What is the subject? In passive voice, you know that the subject of passive voice is the object of active voice, okay. So your country will be taken first according to the formula. This becomes, your country is the object of active voice, but now it becomes the subject of passive voice, then should, then be, and then loved. So how is it
love your country should be loved. By is not needed and the subject is also not needed, because in imperative sentence there is no subject of active voice I'm talking about, it becomes the object of passive voice, but there is no object in passive voice as there is no subject in active voice. Okay, so help the poor should be helped. Help your neighbors should be helped. Don't be daunted by danger, you should not be daunted by danger. You see, where did you come from? अब you कहाँ से आ गया? तो अगर ऐसा कभी भी हो, डोंट बी डॉन्टेड, देखिए ऑलरेडी क्या है, डोंट बी डॉन्टेड, ऑलरेडी बी लगा हुआ है, डॉन्टेड वर्ब का थर्ड फॉर्म पहले से ही है, तो अब क्या करें? तो ये क्या होता है, ये डॉन्टेड एडजेक्टिव बन जाता है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है बट इट बिकम्स एडजेक्टिव, दिस इज वर्ब। और ऐसा कभी भी हो तो रिमेंबर, imperative sentence is always for you. Whenever you see love your country, it is for the listener. Help the poor, it is for the listener. Means whenever you say something, whenever an imperative sentence is used, it is used for you. Okay, remember imperative sentence you के लिए यूज होता है, भले इसमें subject नहीं है, but it is understood that it is used for the listener. Okay, it is for you, so you is taken as the, so it is an exception. I told you there is no subject here, that's why there is no object, but here it is understood because of this, it is already in third form. So what to do? So you are not supposed to write like this, you will write you should not be daunted by danger. You can see be daunted is the same, by danger is the same. Okay, should not has come from don't. Okay, don't insult the poor, here you don't see any you, so this is an exception, just keep in mind. Don't insult the poor, here is an object and there is no such kind of be daunted, be insulted, ऐसा कोई इसमें phrase use नहीं हुआ है, ठीक है? तो I will take the poor just like this, the poor, then should, if there is don't then I will put not, then insult will become be insulted. Okay, next, when a sentence is already starting with let, उसमें था ना पैसिव वॉइस में, यहाँ पर let से हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, पर ये तो ऑलरेडी एक्टिव वॉइस में ही let दिया हुआ है, तो व्हाट टू डू देन? कोई बात नहीं, लेट से हो तो भी कोई बात नहीं, लेट से ही स्टार्ट करना है आपको सेंटेंस, लेकिन ध्यान रहे ये लेट हिम के बाद भी ऑब्जेक्ट है और कंप्लीट के बाद भी द वर्क ऑब्जेक्ट है, तो आपको इसको नहीं लेना है, इसको पहले लेना है लेट के बाद। लेट द वर्क कंप्लीट विल बिकम बी कंप्लीटेड, और ये जो हिम था ना ये ऑब्जेक्ट, इसको यहाँ ले लेंगे बाय हिम, ठीक है? तो क्या हो गया, लेट हिम कंप्लीट द वर्क विल बिकम लेट द वर्क बी कंप्लीटेड बाय हिम। लेट अस डिस्कस द मैटर, आपको दो ऑब्जेक्ट दिखेंगे इसमें, एक अस दिखेगा और द मैटर जो डिस्कस का ऑब्जेक्ट है। तो लेट का जो ऑब्जेक्ट है उसको नहीं रखना है पहले, लेट के बाद ये वर्ब के ऑब्जेक्ट को रखना है लेट के बाद। तो आप देखो लेट द मैटर डिस्कस विल बिकम बी डिस्कस्ड। इफ़ यू वांट टू मेंशन बाय अस दैट्स ओके, ओके, अगर आप बाय अस लिखना चाहते हैं तो ठीक है, इसने दिया नहीं है बाय अस, लेकिन आप लिखना चाहते हैं तो ठीक है, बिकॉज समटाइम्स मैंने आपको बोला ही है कि आई वी यू, आई वी ही, या तो दे, या समवन, समबडी, एवरीबडी, ऐसे जो सब्जेक्ट्स होते हैं बाद में आई मीन लोग नहीं लिखते, बट आप लिखना चाहते तो लिख सकते हो। बट एवरीबडी, नोबडी, एवरीवन, ऐसे को तो लिखने का ही नहीं पीछे, इट इज़ अंडरस्टूड। हाँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल समवन स्टोल हिज पर्स, तो इसका आंसर होगा हिज पर्स वॉज स्टोलन। बाई समवन लिखने की ज़रूरत है ही नहीं। ओके, हाँ, आपको मालूम है कि किसने पर्स चुराया है तो आप लिख सकते हैं बाई जो भी, ठीक है। तो ये सब भी एग्जांपल ऐसे ही है। अब देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, देखो यहाँ तक तो ठीक था, आपको समझ में आ गया। यू सी लेट अस वर्क टुगेदर। अब हियर यू कांट सी ओनली वन सब्जेक्ट इज देयर, बट वर्क टुगेदर, टुगेदर इज़ नॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्क। ओके, देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट। जो हम लोग यहाँ लेते थे ना, लेट के बाद द मैटर ऑब्जेक्ट लिया, जैसे ये था,
ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, तो क्या करने का। तो डोंट वरी, जब ऑब्जेक्ट हो ही ना तो हम कुछ फ्रेजेस अपने आप से हम लोग ऐड कर देते हैं या कुछ क्लॉज ऐड कर देते हैं। ये क्लॉज है, इट इज़ सजेस्टेड दैट, ये हम ऐड कर देते हैं, इसका यूज़ आगे भी करने को मिलेगा अपने को, ठीक है, इसको ऐड कर देते हैं। अब आपको मालूम है कि ये सजेशन है, लेटस से यूज़ हो कोई भी सेंटेंस तो वो सजेशन नहीं होता है या प्रपोजल होता है। तो इट इज़ सजेस्टेड, इट इज़ सजेस्टेड को पैसिव वॉइस में कर दिया, और पैसिव वॉइस में करने के बाद दैट जब लगाते हो इट इज़ सजेस्टेड के बाद, तो आपको एक सब्जेक्ट रखना ही होता है। अब इसमें कोई सब्जेक्ट है नहीं, पर इससे मालूम पड़ता है अस से कि मैं सब्जेक्ट भी रख सकता हूँ। ओके, तो जब आपने सजेस्टेड लिख ही दिया तो शुड भी लगाना पड़ेगा, जब सब्जेक्ट लिखा तो वर्ब भी लगाना पड़ेगा, और ये जो वर्क टुगेदर है वो लास्ट में ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। For example, let us work together, it is suggested that we should work together. Let us play together, it is suggested that we should play together. Let us listen carefully, it is suggested that we should listen carefully. ठीक है। अब let us dance है, डांस के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये भले ऑब्जेक्ट है पर इसके बाद कोई नहीं है, तो ये भी वही है, इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड डांस। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही सेंटेंस आते हैं टू मेक यू कन्फ्यूज्ड। Okay, so these types of sentences are they denote request, kindly, please, 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 kindly या please, इस तरह के दो, मतलब दोनों वर्ड्स में से कोई ना कोई एक वर्ड आए तो आपको समझ जाने का कि वो जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है, देखो एक्चुअली इम्पेरेटिव सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पोस्ट द लेटर। अब ये देखो स्टार्टिंग में इम्पेरेटिव सेंटेंस है, बाद में प्लीज़ है, सिट और कम, ये देखो टेक, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस ही है, बट मैंने आपको बताया था इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या क्या होता है, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस, ये सब होता है, क्योंकि सबके सब वर्ब से स्टार्ट होते हैं। पर प्लीज़ और काइंडली को क्या थोड़ी लिबर्टी होती है, वो कहीं भी आ सकते हैं, प्लीज़ पहले भी आ सकता है या बाद में भी आ सकता है, काइंडली भी पहले आ सकता है बाद में भी आ सकता है, बट जो रियल सेंटेंस है वो यहीं से स्टार्ट होता है, वर्ब से। ओके, यू सी, अब काइंडली को रिमूव कर देने का, प्लीज़ को रिमूव, प्लीज़ को रिमूव, तो उसकी जगह पे लिखना क्या, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, और बाद में कोई चेंज करना ही नहीं है। ये बहुत अच्छा है आपके लिए, बहुत इजी है, सिर्फ टू को ऐड कर देना है, और पोस्ट द लेटर, पोस्ट द लेटर, टेक योर चेयर, टेक योर चेयर, सिट डाउन, सिट डाउन, कम इन, कम इन। चलो एक बार रीड कर देता हूँ आप लोगों के लिए मैं। Kindly post this letter, post the letter, you are requested to post the letter. Take your chair please, you are requested to take your chair. Please sit down, you are requested to sit down. Please come in, you are requested to come in. बहुत ही सिंपल है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं इसमें, क्योंकि ये रिक्वेस्ट के लिए जो वर्ड्स यूज़ किए गए इनकी वजह से हम लोग ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेज हैविंग इंट्रांजिटिव वर्ब, मैंने आपको बताया था इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब्स डोंट हैव एनी ऑब्जेक्ट। अब देखो ये तो बहुत शॉर्ट है, इसमें देखो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि इनकी स्टार्टिंग किससे हो रही है, वर्ब से, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनके अब ऑब्जेक्ट ही नहीं है, आपको ऑब्जेक्ट देखने को ही नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जांपल पहले तो कैसा था, इफ़ आई से प्ले क्रिकेट, तो प्ले के बाद ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, लेकिन यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, स्टैंड अप, गो देयर, गो देयर, देयर ऑब्जेक्ट नहीं हो गो का, क्योंकि गो कभी भी इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, ये अदर वर्ड है, ठीक है। वर्क हार्ड, इसमें भी यही वर्ब ही है, तो इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या करने का, जब ऑब्जेक्ट ना हो तो पॉसिबल नहीं होता है लेट से बनाना या शुड का यूज़ करना या और किसी तरीके से जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था। बट आप एक काम कर सकते हैं, जैसे आपने यू आर रिक्वेस्टेड किया था वैसे आप यू आर ऑर्डर्ड, यू आर एडवाइज्ड। अगर इफ़ यू थिंक वर्क हार्ड, एडवाइस करना मतलब वर्क हार्ड खाली बोला तो इसका मतलब एडवाइस है, तो यू कैन राइट यू आर ऑर्डर्ड। अगर आपको लगे यू आर एडवाइज्ड, अगर आपको लगे कि ये ऑर्डर है तो यू कैन राइट यू आर ऑर्डर्ड। गो देयर अगर आपको लग रहा है ऑर्डर है तो यू कैन राइट यू आर ऑर्डर्ड, और फिर टू 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 ऐड करके आप ये पूरा का पूरा कॉपी कर देंगे। तो यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप, गो देयर, यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर, वर्क हार्ड, यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड। बहुत सिंपल है, ठीक है। अब ये देखिए इसमें भी कुछ चेंजेस हैं। पैसिव ऑफ इनडायरेक्ट कमांड रिक्वेस्ट, इसमें देखो पैसिव ऑफ इनडायरेक्ट कमांड, इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट का भी एक पोर्शन आ जाता है। तो इनडायरेक्ट स्पीच आप जानती हो, आई आस्ट, आई देखो सब्जेक्ट होता है और स्पीकर होता है, लिसनर होता है, उसके बाद जो भी कुछ बोलना हो। तो इनडायरेक्ट कमांड, रिक्वेस्ट या एडवाइस
ऐसा हो तो फिर क्या करने का, यू कैन ईजिली गो थ्रू, ठीक है। सारी चीज़ें वीडियो में कवर कर पाना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, but you can go through, and if you have any query, any question, you can ask, and based upon those things, this is exercise number 8, you can solve it. Exercise number 9 is also there for them, and I think this is simple. It's rule number 25 is simple. I saw Ram play. See, there are two verbs, saw and play, but this verb actually denotes which type of tense it is. This cannot tell you that it is present tense, simple present tense, or any other kind of tense. It is an infinitive without to. Infinitive is to plus verb first form, but an infinitive can also be used without to. That means only verbs first form. So I saw Ram play, Ram was seen to play. It becomes this without infinitive, infinitive without to becomes an infinitive with to, ठीक है, ये ध्यान रखना. I saw Ram play, Ram was seen to play by me. I found him swim, he was found to swim by me. I made him weep, he was made to weep by me. Okay. Keep practicing orally. Okay, now you see, this is the same, but there is a difference. Earlier, see, I saw Ram play. Okay, after this object there was another verb that was infinitive without to, but after this object you will not find a verb like this, you will find a noun. Okay, so this is the difference between the rule number 25 and the rule number 26. रूल नंबर 25 में क्या होता है, ऑब्जेक्ट के बाद कोई ना कोई वर्ब आ जाता है, इन्फिनेटिव वर्ब जो कि विदाउट टू है. और इसमें क्या होता है, रूल नंबर 26 में ये ऑब्जेक्ट के बाद कोई ना कोई नाउन आता है. ठीक है, तो करना क्या है, इट्स देखो आप खाली ये स्टडी करते जाओगे समझ में आता जाएगा. वी मेड हिम, अब वी मेड हिम का क्या होगा, ही वॉज मेड. ठीक है, और चेयरमैन को चेयरमैन लिख दिया. अगर आपको बाई अस लिखना है तो लिख सकते हो इसके लिए, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है. दे इलेक्टेड मुकेश कैप्टन, मुकेश वॉज इलेक्टेड कैप्टन बाई देम बाद में आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते. दे मेड हिम किंग, ही वॉज मेड किंग बाई देम. ओके, यानी जो ये नाउन है इनके बाद ऑब्जेक्ट के बाद इनमें कोई चेंज नहीं आता. गिल्टी ऑफ मर्डर ये पूरा आएगा, गिल्टी ऑफ मर्डर नाउन फ्रेज. ठीक है, फिर ये किंग, यहाँ पे भी किंग, इस तरह से. नेक्स्ट वीडियो मैं भेजता हूँ.